السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ محترم و معزز حاضرین، سامعین و ناظرین اکرام، اس اللہ رب العالمین کا شکر و احسان جس کی فضل اور توفیق سے ہم اور آپ اس پاک بزم اور مجلس کا حصہ ہیں، جس میں کلام الہی، قرآن مجید، قرآن حکیم کے متعلق اور اس کی آیات کے متعلق گفت و شنید ہونی ہے۔ یقیناً سب سے بہترین بات اللہ رب العالمین کا کلام ہے، قرآن مجید ہے، جو کہ ایک آسمانی کتاب منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، جس کے اندر ہدایات ہے ان لوگوں کے لیے جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں اور جو متمنی اور متلاشی ہے کہ انہیں اللہ کی طرف سے ہدایت ملے۔ اس سے پہلے درس کے اندر گزشتہ ہفتہ سورۃ النساء آیت نمبر 26 تک کی بات مکمل ہو گئی تھی۔ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں سورۃ النساء آیت نمبر 27 سے 27 ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ 27 کے اندر سورۃ النساء میں بیان کیا، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور جو لوگ اپنی شہوات کی، نفسانی خواہشات کی پیروی اور اتباع کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم کو اس سے بہت دور کر دے، یعنی حق سے نکال کر باطل کی طرف جھکا دے۔ اب دیکھیں یہاں پہ دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک تو خود اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے بارے میں بیان ہوا، اللہ کیا چاہتا ہے، اور دوسرا جو لفظ استعمال ہوا یتبعون الشہوات، یہ لفظ جو ہے بہت متاثر کر رہا ہے ہمیں اور آپ کہ یہ کیوں نہیں اللہ نے کہا کہ یرید الشیطان، شیطان یہ چاہتا ہے، کیونکہ اس کائنات کے اندر دو لوگوں کی لڑائی ہے، ایک رحمان اور ایک شیطان کی۔ رحمان یعنی اللہ تعالیٰ، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے فرما بردار رہے اور جو کچھ قرآن مجید کے اندر نازل ہوا اس کے بندے اس پر عمل کرے۔ شیطان چاہتا ہے بالکل اس کی اپوزٹ، اس کی الٹا مخالف، کہ کسی طریقے سے بھی اللہ کے بندے اللہ کی نہ سنیں، اللہ جو چاہتا ہے وہ نہ کرے، اللہ جو چاہتا ہے اس کے خلاف کرے، شیطان چاہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے شیطان کا ذکر نہیں کیا یہاں پہ، یہاں جو ذکر ہے اللہ نے کہا واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہی ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اللہ چاہتا ہے۔ اس کے اندر لوجک کیا ہے، توبہ قبول کرے۔ توبہ کون لوگ کرتے ہیں؟ جو گنہگار ہوتے ہیں، اور جنہوں نے گناہ ہی نہیں کیا تو وہ توبہ کیسے کریں گے، ہے نا۔ لیکن یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گنہگار نہیں تھے، تو ہم لوگ بھی جانتے ہیں، معصوم عن الخطا تھے، گناہوں سے پاک تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کرتے تھے، پر ڈے، ہر دن۔ آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن یہ خوبصورتی ہے ہمارے دین اسلام کی، یہ خوبصورتی ہے دین اسلام کی کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گنہگار مانیں، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اگر کسی بندے کے اندر یہ کانفیڈنس آ جائے کہ ہم گناہ کرتے ہی نہیں تو گناہگار کیسے ہو گئے، تو یہ چیزیں اس کو اللہ کے دین سے بھٹکا دیں۔ اب دیکھیں یونس علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہوں گے، ایک پیغمبر تھے، ہم ان لوگ ان کو مچھلی والے کے نام سے جانتے ہیں، کیونکہ مچھلی ان کو نگل لی، وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔
कौन? हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब जब मछली के पेट में गए तो एक तो अंधेरा, मछली का पेट अंदर में, हम लोग का पेट है तो उसमें लाइट नहीं है, कोई सामान या कोई आदमी चल जाए तो अंदर अंधेरा है। ऊपर से मछली समंदर में चली गई, एक समंदर की गहराई का अंधेरा। तो उन्होंने वहां पे एक दुआ मांगी अल्लाह से, अल्लाह को मदद के लिए पुकारा। कौन? हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उन्होंने कहा कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, नहीं है कोई माबूद मगर तू ही। इस्तिस्ना इसमें इल्ला के जरिए किया गया है, नहीं कोई माबूद, यानी तमाम माबूदा ने बातला का इनकार कर दिया, कोई माबूद नहीं है। इल्ला अंता, मगर तू, अल्लाह तू है, तू ही इबादत के लायक है, तू ही हमारा सच्चा और हकीकी माबूद है। सुब्हानका, तू पाक है। क्या कहा उन्होंने? सुब्हानका, तू पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं ही जालिमों में से हूं। अब एक नबी अपने आप को जालिम कह रहे हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? नबी को ये कहना चाह रहे हैं हम तो पैगंबर हैं। अरे हम कहाँ गुनाह करते हैं? हमसे कहाँ गुनाह होगा? हम तो अल्लाह के रसूल हैं, पैगंबर है, मैसेंजर है। लेकिन जब एक नबी दुआ कर रहा है अल्लाह की बारगाह में तो कह रहा है इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं जालिमों में से हूं। अभी हमें से कोई कहते कि आप जालिम है तो हम पड़ जाएंगे, कैसे कह दिया आपने? हम जालिम कैसे हैं? फिर नबी ने कैसे अपने आप को जालिम कहा? क्योंकि नबी अल्लाह के हुजूर खड़े थे, उनको अल्लाह से मदद चाहिए थी। वालेकुम सलाम। अल्लाह से उनको मदद चाहिए थी। और जो दुआ का तरीका हमने पैगंबरों से सीखा कि अल्लाह के सामने अपने आप को जालिम माने, अल्लाह के सामने अपने आप को गुनहगार माने, अल्लाह के सामने अपने आप को खताकार माने। अल्लाह को ये अंदाज बहुत पसंद आता है कि मेरा बंदा मेरे सामने जो इल्तिजा कर रहा है, जो दुआ मांग रहा है, उसमें ये तस्लीम कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि अल्लाह मैं जालिमों में से, मैं गुनहगारों में से, अल्लाह को माफ कर दे। ये अंदाज अल्लाह को बहुत पसंद आता है। क्यों पसंद आता है? क्योंकि अल्लाह को ये लगता है कि उस बंदे को ये बात बखूबी पता है कि इस्तिगफार जो हम कर रहे हैं अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह ही माफ कर देगा। अगर गुनाह हुए हैं तो गुनाह की तलाफी अल्लाह के सामने करनी है। यहाँ पे भी अल्लाह ने बयान किया वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम, अल्लाह चाहता है कि तुम्हारी तौबा कबूल करे। तो तौबा कबूल करे, दो तरह के लोग होंगे। एक वो लोग होंगे जो हकीकत में गुनाह नहीं करते, अल्लाह वाले हैं, और एक वो है जो गुनाह करते हैं। अब ये तय करना है क्या हम में से कोई है जो अपने आप को माने कि हम ही अल्लाह के नेक बंदे हैं? यही तो असल मसला है बतलाने का। आप उनसे पूछिए जो वली हैं, हकीकत में अल्लाह डरने वाले हैं, दिन रात अल्लाह से डरते हैं, कोई हराम का काम नहीं करते, सिर्फ हलाल काम करते हैं, एक एक चीज पर एक एक कदम उठाते तो डरते हैं अल्लाह से। आप उनसे पूछें। मिसाल के तौर पर सहाबा के ले लीजिए। 10 सहाबा दुनिया में ऐसे थे जिनको जन्नत की खुशखबरी मिली कि नहीं मिली? उसमें उस्मान गनी भी थे, उमर फारूक थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी थे, हजरत अली भी थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ भी थे। 10 लोग थे। इन लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कह दिया कि 10 लोग जो है अल्लाह की तरफ से स्पेशल इन्विटेशन आया हुआ है कि देखो ये लोग इंतकाल करेंगे और सीधा कहाँ चले जाएंगे? जन्नत में। मिसाल दी जाए, अगर वली से कहा जाए आज के डेट में जो अल्लाह वाले हैं कि भाई आप अल्लाह वाले तो नहीं माने, क्यों? वो अपने आप को गुनहगार माने। नहीं, आपको लग रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि शायद हम गुनहगार हैं, अल्लाह के बारगाह में हम इस्तिगफार करेंगे। यही अंदाज उन सहाबा इकराम का भी था जो आपके साथी थे। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दूसरे खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन थे, है ना? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो ससुर भी थे, उनकी बेटी से अल्लाह के नबी का शादी हुआ था। वो जब मर्जुल मौत में गए, हम जानते हैं कि एक मुहर्रम के दिन उनके ऊपर फजर की नमाज में हमला हुआ था, है ना? फिरोज नामी एक शख्स था, अबू लुलू जो मजूसी था, उसने हमला किया था, बड़ा जबरदस्त हमला हुआ था। उसी जख्म में वो बेड पर चले गए और अपने आखिरी दिन को गिनने लगे। ये उमर फारूक हैं जिनको देखकर शैतान रास्ता बदल देता था। उमर आ गए, जिन्होंने फुतुहात की, कई मुरब्बा मील के मालिक बने और उनके कपड़ों पे कई कई पैबंद, यहाँ चिप्पी, यहाँ चिप्पी, यहाँ चिप्पी, कपड़ा फट के सील के पहन लिए, नए नहीं पहनते थे। ऐसा नहीं कि हम नहीं पहन सकते, वो नहीं पहनते तो हम भी ना पहने। उनका एक ईमान याद थी कि नहीं, वो जो पैसा हम नया खरीदने में लगाएंगे, किसी की मदद कर देंगे उस पैसे से, जरूरतमंद है। वो जब मर्जुल मौत में थे तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, अब्दुल्ला इब्न उमर, हम लोग हदीस में पढ़ते होंगे, अन अब्दुल्ला इब्न उमर, है ना? उन्होंने अपने बेटे से कहा कि जाओ हुज़ैफा बिन यमान को बुला के लाओ। अब जानते हैं हुज़ैफा बिन यमान कौन थे? राजदार नबी थे। नबी के जितने टॉप सेक्रेट थे वो सब है तो हुज़ैफा जानते थे। हजरत हुज़ैफा के अलावा कोई नहीं जानता था।
अल्लाह ताला ने मुनाफिकों को जो लिस्ट कुरान के अंदर बयान किया, अल्लाह के रसूल के ऊपर जो वही आई कि अल्लाह के रसूल आपके सफ में ये मुनाफिक है, अल्लाह के रसूल ने इस मुनाफिक की लिस्ट को अबू बकर सिद्दीक को नहीं दिया, जबकि आपके हम खास थे। नबी के बाद अगर दूसरा मुकाम किसी को मिलता है तो अबू बकर सिद्दीक को मिलता है, लेकिन उनको नहीं दिया। इस तरीके से एक मिनिस्ट्रियल लेवल के भी हम अल्लाह के रसूल से सीख सकते हैं कि अगर हमको मिनिस्ट्री मिल रही तो कैसे हम बांटे। हम लोग खास खास को देते हैं, आप बड़ा होता है तो मेरे दोस्त है रिश्तेदार, आप ले लीजिए होम मिनिस्ट्री। राजदारी नबी हुज़ैफा बिन यमान, जिनका नाम शायद ही बहुत कम सुनने में आता है, जितनी सीक्रेट थी, खुफिया बातें थी वही जानते थे। मुनाफिकों की लिस्ट उन्हीं के पास थी। जो सहाबा इतने सारे हैं, सब सहाबा नहीं थे। उसमें अब्दुल्ला इब्न उबई मुनाफिकों का सरदार था, उसके हवारी थे, जिसको अल्लाह ताला ने आइडेंटिफाई करके किसको बतलाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ैफा बिन यमान को बतलाया। अब मर्जुल मौत में उमर फारूक है, तो कहते अपने बेटे से जाओ हुज़ैफा को बुलाया गया कि जाइए आपको अमीरुल मोमिनीन बुला रहे, चलिए। तबीयत खराब है उनकी, और सारा मदीना जानता था कि उनके ऊपर अटैक हुआ है। हुज़ैफा बिन यमान गए वहां पे, बिल्कुल बेड पर लेटे हुए हैं और पट्टी वगैरह सब जो उस वक्त दौर के हकीम हुआ करते थे, जड़ी बूटी लगाकर बांध दिए। अब गए तो उनके सिरहाने पर बैठ, सिरहाना समझते हैं ना, सर के पास बैठ गए। हुज़ैफा बिन यमान बैठिए। उनके हाथ को उमर फारूक ने पकड़ लिया और एक ही जुमला का उमर फारूक ने, हुज़ैफा तुम्हारे पास मुनाफिकों की लिस्ट है जो अल्लाह के रसूल ने दी थी, सिर्फ इतना बता दो उसमें उमर का नाम नहीं है। ये था ईमान। वो उमर जिनको देखकर शैतान रास्ता बदल देता था, जिन्होंने फुतुहात के एक सिलसिले को बढ़ाया, यहां तक कि अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं आखिरी नबी हूं, आखिरी रसूल हूं, आखिरी पैगंबर हूं, मेरे ऊपर नबूवत का खात्मा हो गया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। ये मकाम तो उमर फारूक का। इतनी जलील कद्र सहाबी, वो कह रहे हैं हुज़ैफा बिन यमान से, देखो तो उमर का तो नाम नहीं ना, उमर बिन खत्ताब का। अगर उनसे भी हम लोग पूछते उमर फारूक से, अगर जिंदा रहते हैं, कि आप जन्नती है, बोलते ना नाम क्यों नहीं, ये मत कहो मेरे भाई। कौन सी गलती अल्लाह को नापसंद गुजर जाए, नागवार गुजर जाए। और अभी हम 5 साल अगर नमाज पढ़ लिए तो छठा साल में तो अच्छा आदमी के छक्का छोड़ा देंगे। नमाज ही पढ़ता है, नमाज पढ़ता, बोल बोल कर क्या हम नमाजी, बोल बोल कर हम नमाजी, हम नमाज पढ़ते हैं, हम दीनदार हैं, तुम कुछ नहीं। ये नहीं आना चाहिए किसी मुसलमान और बंदे के अंदर। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह चाहता है तुम्हारी तौबा कबूल करे, तो लिहाजा हमें अल्लाह के बारगाह में चाहे हमारे गुनाह हो चाहे ना हो, ये लॉजिक याद रख ले, चाहे हमारे गुनाह हो चाहे ना हो, हमें अल्लाह के हुजूर तौबा इस्तिगफार करते रहना है, माफी तलाफी करती रहनी है। ये एक पॉजिटिव इंसान की पहचान होनी चाहिए। ये चीज जहां यार हम कहां बुरा किए हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने आप को जालिम कह दिया, जालिम कह दिया। उसी तरह आदम अलैहिस्सलाम की जो दुआ है, रब्बना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह हमने अपनी जान पर जुल्म किया। क्या नबी जुल्म करते थे? क्या मान सकते? कोई पैगंबर जुल्म किए होंगे, चाहे खुद पर किसी और पर? नहीं मानने वाली बात ही नहीं है। लेकिन ये अंदाज है, और अल्लाह ने भी एक चीज इस आयत के शुरू टुकड़े में बता दिया कि अल्लाह चाहता है कि तौबा कबूल, मांगो तो सही, अल्लाह तैयार है तो बख्शिश के लिए, हम तैयार नहीं बख्शिश लेने के लिए। और हालात देखिए मुसलमानों के क्या हो गए हैं, दीन और शरीयत को जैसे खाने में नमक होता है उसी तरह इस्तेमाल करते हैं, खाने के बाद जैसे जर्दा पुलाव होता है उसी तरह दीन को इस्तेमाल करते हैं। पूरी जिंदगी दुनिया के हिसाब से जी रहे, दिन भर थोड़ा सा खाली इस्लाम मिक्स कर देते हैं, और उसी पे हम मुसलमान कहला रहे, हम मुसलमान हैं, भाई भाई का पट नहीं रहा, हम मुसलमान हैं, किसी से 3 दिन से ज्यादा बातचीत बंद है, हम मुसलमान हैं, एक दूसरे की चुगली गिबत कर रहे हैं, हम मुसलमान हैं, सूद ले रहे हैं, हम मुसलमान हैं, सब मुसलमान हैं, सारा कुछ करने के बाद भी हम मुसलमान हैं। अल्लाह चाह रहा है कि तौबा कबूल करो, मत देखो दुनिया को, दुनिया के लोगों को, तुम देखो अल्लाह को और उसके रसूल को। ये चीजें तुम्हें कब्र में आराम पहुंचाएगी, और कोई चीज पहुंचाने वाला नहीं है। जिसको देखकर हम हसद कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं, और उसके टेंशन को अपना टेंशन लिए हुए हैं, वो कुछ भी काम आने वाला नहीं है। तो अल्लाह कह रहा है कि वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम, अल्लाह चाहता है कि तुम्हारी तौबा कबूल करे। कौन लोग नहीं चाहते कि तुम तौबा करो? आगे अल्लाह कह रहा है वयुरीदुल लज़ीना यत्तबिऊना शहवात, जो लोग अपने नफ्स की पैरवी करते हैं वो क्या चाहते हैं, अंतमिलु मैलन अजीमा, के तुमको इसे बहुत दूर करते हैं, यानी हक से निकालकर बातिल की तरफ झुका दे। तो यहाँ पे एक डिफरेंट बहुत साफ है। एक ये कि अल्लाह चाहता है कि तुम्हारी तौबा कबूल करे, तो उसके बाद शैतान का जिक्र आना चाहिए था, लेकिन शैतान का जिक्र नहीं आया। किसका जिक्र आया? जो लोग अपने नफ्स की पैरवी करते हैं, नफसानी ख्वाहिशात की इत्तिबा करते हैं, शहवात की इत्तिबा करते हैं, उनके बारे में जिक्र आया।
अब नफ्स की पैरवी कोई भी कर सकता है, कोई जरूरी नहीं कि गैर मुस्लिम ही करता है नफ्स की पैरवी, क्यों मुसलमान नहीं करते? मुसलमान नहीं करते नफ्स की पैरवी। नफ्स की पैरवी समझते हैं? नफ्स की पैरवी किसको बोलते हैं? एकदम जमीनी मिसाल सुन लीजिए। ठंडी का मौसम है, फजर की अजान हो रही है, रजाई में गरम गरम माहौल में घुसे हुए हैं, अब अजान हो गई, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। लेकिन नफ्स कह रहा है, अरे रो पढ़ लो, ठंडा में अभी सूरज भी नहीं निकला, कुहासा गिर रहा है पूरा, 11 डिग्री 9 डिग्री टेम्परेचर है, कहाँ उठो ठंडा पानी, सुध गए। इसको कहते हैं नफ्स की पैरवी। तो जो सो गया मुसलमान ही ना है, गैर मुस्लिम तो नहीं है। हम में से जो सो गए वो तो मुसलमान ही है। यही बड़ी बेहतरीन बात इस आयत की। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अल्लाह चाहता है तुम्हारी तौबा कबूल करे और गैर लोग चाहते हैं, यानी गैर मुस्लिम चाहते हैं कि तुमको बहका दे। मुसलमान ही तो पैरवी कर रहा है अपने शहवात की। इसीलिए अल्लाह ने कॉमन बात कह दिया, जो लोग भी नफ्स की पैरवी करेंगे, चाहे मुसलमान हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे जो, हम बांटेंगे नहीं किसी को। और हम लोग का जहन कहाँ चला जाता है? गैरों की तरफ चला जाता है, गैरों की तरफ चला जाता है कि नहीं वो लोग हमको बहका रहे हैं। हम तो जमीनी मिसाल दी है, फैक्ट बताया गया, असल फैक्ट। नफ्स कहता है कि नहीं 6-7 बजे पढ़ लेंगे, 8 बजे ऑफिस जाएंगे, 7 बजे उठेंगे, उसी वक्त पढ़ लेंगे। तो फिर अल्लाह ने क्यों फर्ज किया नमाज को, फजर की नमाज को? क्यों अल्लाह को इल्म नहीं था पब्लिक को परेशानी होगी, 7 बजे फर्ज कर दिया जाए, ठीक रहता। सोचने वाली बात है मेरे भाई। देखिए हम कहाँ चले आए, सारे काम हमारे और इसी नमाज छोड़कर, और उसमें भी हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसको हम उर्दू में तरमीम कहते हैं कि नहीं 5 बजे भोर में 4 बजे बोले सही नहीं लग रहा। अभी तो माशाल्लाह ठंडी का मौसम है, 5:30 बजे जमात हो रही है, 5:45 में हो रही है। गर्मी में आई ना 4:45 बजे 4 बजे जमात होती है, तो इसमें हम नहीं आ पा रहे तो उसमें कैसे जाएंगे? आज नमाज 5 वक्त फर्ज है। और किसी भी हदीस के अंदर कोई भी आलिम नहीं कह सकता कि आप 2 साल तक छोड़ सकते हैं, बाद में पढ़ लीजिए, कोई आलिम नहीं कह सकता। लोग कहते हैं ना कि नहीं पढ़ सकते, नहीं, गलत बात है मेरे भाई। अल्लाह ने कहा वल्लज़ीना यत्तबिऊना शहवात, जो लोग अपने नफ्स की पैरवी करते हैं वो चाहते हैं कि तुमको अल्लाह के रास्ते से दूर कर दें। तो ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। जो अपने नफ्स की पैरवी करे, ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। वो चाहते हैं कि हक से निकाल कर बातिल की तरफ तुमको ले जाए, हक को छोड़ाकर बातिल, मतलब जिसको अल्लाह पसंद नहीं करता, गलत। तो ये जरूरी है कि अल्लाह ने जो जिंदगी दी है उसको हम डेट तारीख ना रखें कि 3 महीने के बाद रमजान आएगा तो हम नमाज को शुरू करेंगे, 5 दिन के बाद जुमा आएगा तो जुमा से नमाज शुरू करेंगे। जिंदगी और मौत का कोई ठिकाना नहीं है। हम जो वक्त दे रहे हैं अपने आप को, लेकिन मौत ने कभी किसी को वक्त नहीं दिया है, ये बात याद रखें, ज़हन होनी चाहिए। मौत ने कभी वक्त नहीं दिया, वो जब आएगी तो कुछ नहीं सुनेगी। वो हम एक सेट किए हुए, अलार्म सेट किए हुए 3 महीने में, या रमजान आएगा तो मार्च में पढ़ेंगे, या अभी 5-6 रोज के बाद जुमा आएगा। तो इसीलिए अल्लाह ने जो जिंदगी दी है, बहुत कीमती जिंदगी है, उसको अल्लाह की इबादत में लगाए। उसके बाद अल्लाह ताला बयान कर रहा है आयत नंबर 28 के अंदर, युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ अन्कुम, अल्लाह चाहता है कि तुमसे तखफीफ कर दे। तखफीफ हल्का, उर्दू में उसको हल्का बोलते हैं, अरबी में इसका खफ्फा युखफ्फिफु कहते हैं। तखफीफ उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, बोलते ना तखफीफ, हल्का। अल्लाह चाहता है कि तुमसे तखफीफ कर दे, यानी तुम्हारी परेशानी को हल्का कर दे, तुम्हारी मुसीबत को हल्का कर दे, तुम्हारी बीमारी को हल्का कर दे, या जो भी चीजें जिसको तुम नागवार समझते हो, जो तुमको लगता है कि हमारे फेवर में नहीं है, उसको हटा दे। देखिए कैसे मुमकिन होगा? इसी वक्त मुमकिन होगा जब अल्लाह की इबादत करेंगे तब, या जो अल्लाह के अहकामात कुरान के अंदर और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहादीस के अंदर बयानात है और तौर तरीके, जब तक उस पर अमल नहीं करेंगे तकलीफ नहीं होगी। ये अल्लाह ताला का कानून है। अल्लाह ने हमें और आपको सिर्फ अपनी इबादत के मकसद से पैदा किया है, ये हमारा अव्वल मकसद है, पहला मकसद। और देखिए आज क्या हालात है कि जो मकसद के लिए हम दुनिया में आए हैं, उस मकसद को हमने गोल मटोल कर दिया, असल चीज से हटकर नकल चीज की तरफ चले गए, असल चीज को छोड़कर उस चीज की तरफ जा रहे जिसकी कोई अहमियत नहीं है। अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह चाहता है कि तुमसे हल्का कर दे। वो खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, अल्लाह ने कहा कि इंसान बहुत कमजोर पैदा किया गया। समझ रही है? इंसान को अल्लाह ने कमजोर पैदा किया, सही बात है। देखिए पैदा हुए हम लोग, ताकत थी, हर कोई अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ, जब वो पैदा हुआ उसकी ताकत थी, खुद से उठ के चले जाए कहीं, खुद से कपड़ा पहन ले, खुद से जो नाक से गंदगी निकले उसको साफ कर ले, मुंह से जो भी निकल रहा है उसको ठीक कर ले,
कुछ ताकत थी हम लोगों की? कुछ ताकत नहीं थी। और जब बुढ़ापे में जाते तो फिर वही 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 हाल हो जाता है बचपन वाला, ना खुद से चल पाएंगे, लाठी के सहारे तो डंडे के सहारे या अपने बेटों के सहारे, सहारों की जरूरत पड़ती है। अल्लाह ने कहा कि इंसान कमजोर पैदा किया गया है, इसीलिए इंसान को अल्लाह जब ताकत और जवानी दे तो उस ताकत और जवानी को अल्लाह के बारे में अल्लाह ये ताकत जवानी तूने दिया है, छीन भी सकता है तू, इसका एतराफ होना चाहिए। अल्लाह तो छीन भी सकता है, तो यह ताकत मिली है तो ताकत का इस्तेमाल गरीबों को दबाने के लिए और मजलूमों पर जुल्म करने के लिए ना इस्तेमाल करें। बात याद रखिए, हम कमजोर हैं तो हमें ताकत अल्लाह ने दिया, हम भूखे थे तो हमें खाना अल्लाह ने खिलाया, हम बीमार थे तो हमें शिफा अल्लाह ने दिया। हम तो अल्लाह के हर हाल में मोहताज हैं। चल नहीं सकते थे आज चल पा रहे हैं, बोल नहीं सकते थे बचपन आज बोल पा रहे हैं, लिख नहीं सकते थे आज लिख पा रहे हैं, पढ़ना नहीं आता था अल्लाह ने पढ़ना सिखा दिया। एक मोमिन अपनी कामयाबी का सारा क्रेडिट अल्लाह को देता है। हम अब जो कुछ भी है, आज हम अच्छी अंग्रेजी पढ़ लेते हैं अल्लाह के वजह से। मेरी कोई क्वालिटी नहीं है, मेरा कोई कमाल नहीं है, ये एक मोमिन की पहचान होनी चाहिए। होता है ना, बातों बातों में कह देते हैं कोई एग्जाम में अच्छा नंबर ला दिया, पास कर दिया, बड़ी मेहनत किए थे, 3 महीना तो अपने आप को बंद कर लिए थे कमरे में, बातचीत किसी से नहीं करते थे। नहीं बोलना चाहिए, डरना चाहिए अल्लाह से। ये जुमला होना चाहिए कि नहीं अल्लाह ने चाहा तो हम कुछ नहीं किए भाई, अब कैसे एग्जाम पास कर लिए, मेरा कोई कमाल नहीं, उस रब का कमाल है। अल्लाह खुश होता है, अल्लाह खुश होता है, अल्लाह खुश होता है कि मुझे दे रहा है क्रेडिट, मैं उस लायक हूं, हकीकत तो दे रहा है। अगर अल्लाह ना चाहे कि हम कामयाब हो, दुनिया की ताकत है जो कामयाब कर दे। अल्लाह अगर हमें मौत देना चाहे, कुछ है जो बचा ले। अल्लाह हमको जिंदगी देना चाहे तो कोई है हमको मार दे। तो अल्लाह यही चीज बयान कर रहा है कि खुलिकल इंसान तो ज़ईफ़, इंसान तो कमजोर पैदा किया गया, अल्लाह ने कमजोर ही पैदा किया है। तो जब ताकत मिले, जब जवानी मिले, जब उरूज मिले, तो हमेशा अल्लाह के सामने झुकना चाहिए। ये ताकत, ये उरूज, ये जवानी हमेशा नहीं रहती। दुनिया ही नहीं रहेगी तो हम कैसे रहेंगे, है ना। दुनिया खत्म हो जाएगी, आसमान रुई की तरह, पहाड़ रुई की तरह उड़ जाएंगे, आसमान टूट पड़ेंगे, सूरज चांद सब बिखर जाएंगे, है ना। जिल्ज़ाल आयत सूरज पढ़िए, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। इंसान कहेगा अरे क्या हो गया, ये कैसे हो गया। तो मेरे भाई, इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतनी बड़ी बड़ी बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर बयान कर रहा है। सिर्फ हम अपने आमाल की इस्लाह करें, हम गैरों, देखिए एक फैक्ट ये भी है कि अगर थोड़ी सी इल्म या थोड़ा सा अमल हो जाता है तो हम गैरों के पीछे लग जाते हैं। अब तुम भी करो, वो कर नहीं रहा है, वो करता नहीं है, नेकी करने के बाद भूल जाए कि हमने नेकी की है, याद रखेंगे तो हमारे अंदर तकब्बुर पैदा हो जाएगा। हमने नेकी कर ली, उसको कमतर कर ली, अल्लाह के रिकॉर्ड पे चला गया, अल्लाह के रिकॉर्ड से डिलीट नहीं होगा इंशाअल्लाह, वो चला गया अल्लाह के रिकॉर्ड में, है ना। वो किरामन कातिबीन 2 फरिश्ते कंधों पे हैं। और आपको हदीस में मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते में 2 दिन रोजा रखते थे, एक मंडे के दिन और एक थर्सडे जुमरात को, सोमवार और जुमरात को, हर हफ्ते रखते थे, हर हफ्ते आपका मामूल था। साहबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वजह है कि आप हर जुमरात और सोमवार को रोजा रखते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हफ्ते में 2 दिन बंदों के जो डॉक्यूमेंट्स है अमल के फाइल, वो अल्लाह के यहाँ जाते हैं। 2 दिन जो फरिश्ते हैं, बुराई वाला और नेकी वाला, सोमवार और जुमरात को वहां सबमिट होता है अल्लाह के सामने कि अल्लाह इस सोमवार से लेकर जुमरात तक का, जुमरात से लेकर इतवार तक का, ये पूरा हम लोग का अमल जो है कच्चा चट्टा अल्लाह के पास जाता है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब मेरे अमल अल्लाह के पास जाए तो मैं रोजे से रहूं। फरिश्ते लिखेंगे ना कि अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल है, आज रोजे से, आज रोजा है तो रोजे का सवाब है। ये चीज है कि अमल नेकी का एक बहाना होना चाहिए। थोड़ा सा अमल कर ले और दूसरों पर तंज करना शुरू कर दी, सही बात नहीं। मैंने इससे पहले एक बार कहा था कि पहले पैसे पर गुरूर होता था, जवानी पर, बॉडी पर और जिस्म पर गुरूर होता था, अब इबादत में भी गुरूर आ गया है। ये प्रैक्टिकल में बात बता रहा हूँ। कुछ लोग हैं ऐसे जिनको मैं जानता हूँ जो 20 सालों से 10 सालों से नमाज पढ़ रहा है, तो इस बात का जिक्र करते हैं, मैं तो बहुत बचपन से नमाज पढ़ता हूँ, लोगों को तंज करता है, तो मैं नमाज नहीं पढ़ता, जवान लड़का हो गया मोबाइल चलाता है, देखो लोग बचपन से नमाज पढ़ रहे हैं, ये गुरूर है। आपको उसने पूछा आपसे कि आप कब से पढ़ रहे हैं, पूछ रहा है सामने वाला। अल्लाह का रसूल ने तबलीग इसी तरह की, अरे मैं तो अल्लाह का नबी हूँ, मैं तो तहज्जुद पढ़ता हूँ, रात रात भर जगे रहता हूँ, पाँव फूल जाते हैं, ये है ऐसा बोला अल्लाह के रसूल ने? कभी कहा नहीं, कहा अल्लाह के रसूल ने। इबादत का गुरूर हो गया लोगों को, ये तो बहुत खतरनाक चीज है, ये तो रियाकारी में आ गया, रियाकारी शिर्क है, रिया शिर्क है। तो हम इबादत जब करें
तो एक बात हमेशा याद रखिए कि हम गुनहगार हैं, बहरहाल हम गुनहगार हैं। ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर कभी पैदा ना होने दे कि बहुत हम नेकी करते हैं, अल्लाह के हम बरगज़िदा बनते हैं। ये चीज अपने अल्लाह से कहें दुआओं में कि अल्लाह जो भी इबादत हम करते हैं, अगर तू जानता है कि इसमें खुलूस और लिल्लाहियत है तो अल्लाह तो उसको शर्फ कबूलियत बख्श, है ना। कितनी अच्छी बात है। जिसकी इबादत करो उसी से कह दिया हमने, लोगों से कहने क्या फायदा। अब उसके बाद अल्लाह ताला आयत नंबर 29 सूरह निसा आयत नंबर 29, देखिए कितनी बड़ी बात अल्लाह बयान कर रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, तुम लोग आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीके से ना खाओ। बातिल मतलब गलत तरीके से, हराम तरीके से। खाने पीने के बारे में अल्लाह यहाँ बयान कर रहा है कि खान पान भी हमारी जो हो ये डिसाइड कौन करेगा, अल्लाह करेगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस के अंदर बयान किया क्या चीजें हलाल है क्या चीजें हराम। अब अगर हलाल हराम पे आते हैं तो देखिए हमारा मुआशरा जो है, जिस मुआशरे में हम आप रहते हैं, हिंदुस्तान या बंगाल के अंदर जो भी, हम लोगों ने इस्लाम को बड़ा महदूद कर दिया है, दीन को या दीनी तालीम को बड़ा महदूद कर दिया है। हैरत तो उस वक्त होती है कि जब हमारे कौम के लोग बड़े बड़े ओहदों पर है और दीन के बारे में जीरो है, कुछ नहीं जानते, उनको पता ही नहीं, और टैलेंट से भरपूर है, काबिलियत की कोई कमी नहीं उनके अंदर, लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत को कभी भी इस्लाम के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया। हर मुसलमान अपने कौम का एक मेंबर है, मालूम है कि नहीं, नुमाइंदा है। नुमाइंदगी मतलब क्या होता है, हम इस्लाम की नुमाइंदगी का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम कोई काम करेंगे गलत तो याद रखिएगा कि सिर्फ आप बदनाम नहीं होगे, पूरा कौम बदनाम होगा। उसामा बिन लादेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला कर दिया, किया ना, तो क्या उसी को कहा गया टेररिस्ट है? अमेरिकन मीडिया को उठाएंगे उस जमाने में तो पूरे इस्लाम को टेररिस्ट से जोड़ा गया, पूरे इस्लाम को किया एक आदमी ने, लेकिन इल्जाम कितने पे लगा? पूरी कौम पर लगा, पूरे मुसलमानों पे लगा कि इस्लाम आतंकवाद की तालीम देता है। ये टॉपिक चलने लगा अमेरिका के अंदर, लेकिन अल्लाह ताला अपने दीन को गालिब करने वाला है। उस घटने से रिएक्शन उल्टा हुआ और बड़ी तादाद में लोग मुसलमान होने लगे यूरोप के अंदर। मतलब यूरोप में एक सर्वे कराया गया तो सबसे तेजी से फैलने वाला दीन इस्लाम था इस घटने के बाद, क्योंकि वो प्लानिंग कर रहे थे, वो चाल चल रहे थे और अल्लाह अपनी प्लानिंग कर रहा था। इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथों में है। तो हर मुसलमान अपने कौम का नुमाइंदा है। हर मुसलमान को याद रखना चाहिए जो हम करें बहुत सोच समझ के करें, इसलिए कि हमें हमारे अमाल का भी मामला है और दुनियादारी का भी मामला है कि गलत मैसेज लोगों के पास ना जाए कि मुसलमान ऐसे भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये गुटखा वगैरह के बारे में, गुटखा नहीं खाते हैं, उसके बारे में एक सवाल आया कि, और उसमें वो तंबाकू जिसको बोलते हैं तंबाकू और सिगरेट के बारे में सवाल आया कि क्या हमारा पीना जायज है कि ना जायज है। और अक्सर आते रहता है, एक मतलब कई मरतबा आया है कि पी सकते हैं कि नहीं पी सकते। तो अब सवाल ये हुआ कि जिसको जो सवाल कर रहा है वो पहले से एक माइंडसेट किया हुआ है कि जवाब कुछ भी थे आपको यही मानना है, तो ये थोड़ा सा खतरनाक है। और एक आदमी सीखना चाहता है, चलो दोस्ताना ताल्लुकात की सिखा रहे तंबाकू खा सकते हैं, तो उसके दिल में आया कि चलो पहले मौलाना का पूछ लेते हैं, उसके बाद खाना है ना खाना है डिसाइड किया जाएगा। अभी सवाल आया तो हमने कह दिया कि नहीं खाना चाहिए, ये हराम है। वो आदमी एक सेट माइंडसेट लिया होता है हराम है। क्यों हराम है? बहुत से मुसलमान खाते हैं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत से मुसलमान खाते हैं। अभी मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि हर मुसलमान अपने कौम का नुमाइंदा है। वो जो काम कर रहा है कहीं ऐसा ना हो कि उसके काम की वजह से और लोग दिन से दूर हो जाए, तो उसने एक अच्छा जुमला नहीं। तो बहुत अपने दोस्तों को देखते हैं वो सिगरेट वगैरह भी पीते हैं और गुटखा भी खाते हैं। हमने कहा कि भाई क्यों, तो कहे उसमें नशा थोड़ी ना, नशा वाली चीज हराम है, जिसमें नशा है वो हराम है, समझ रहे ना। तो हम तो एक ही बात कहते हैं, अगर ऐसी बात है नशा नहीं है तो आप सिगरेट मस्जिद में पीजिएगा, पीजिए, हराम नहीं तो मस्जिद में पीजिए। अब ये चाय है, मैं आपके यहाँ भी पी सकता हूँ, मस्जिद के अंदर भी पी सकता हूँ, पी सकते हैं नहीं पी सकते? खाना लेकर आ जाइए, पुलाव बिरयानी भात चावल रोटी आप दीजिए, मस्जिद में भी हम खा लेंगे बैठ के और यहाँ भी बैठ के खा लेंगे, क्योंकि वो चीजें हलाल है। तो फिर जब सिगरेट हलाल है तो मस्जिद में क्यों नहीं पी सकते? वहां भी पीना चाहिए। यानी आप खुद जानते हैं कि हराम चीज, आपको पता है, लेकिन आप जस्टिफाई कर रहे हैं किसी तरीके से को सही मौलाना के मुंह से निकलवाइए देता है, क़यामत भी पकड़ा दे उसको, यही बोले थे तो पिए होता है नहीं, हंसने की बात ऐसी होता है।
हम लोगों को मजबूर किया जाता है कि आप किसी तरह का हाँ बोल दीजिए ताकि हम बच जाए, फिर क़यामत में पकड़ाइएगा आप, हमको ना पकड़ाइएगा। मेरे भाई, एक मुसलमान अपने कौम का नुमाइंदा होता है। अब यह खाने पीने के बारे में अल्लाह ने कहा कि ऐ ईमान वालो, अब किसको अल्लाह ने मुखातब किया ये भी देखना होगा। अल्लाह ने नहीं कहा या यो नास, ऐ लोगों, लोगों से तो नहीं कहा, या यो नबी, ऐ नबियों की जमात, ये भी अल्लाह ने नहीं कहा। अल्लाह ने उनको कहा जो ईमान ला चुके, यानी हम लोग। माशाअल्लाह, अल्लाह कह रहा है ईमान वालों से, ला ताकुलू, तुम ना खाओ, अमवालुकुम बैनकुम, आपस में एक दूसरे का माल बिल बातिल तरीके से, इल्ला, मगर ये कि अंतकुन तिजारतन अंतराजी मिनकुम, कोई तिजारत कर लो आपस में और राजी खुशी खा लो, खरीद फरोख्त करके, लेकिन बातिल तरीके से मत खाओ। बातिल की एक लंबी फहरिस्त है, एक दो नहीं, कि कौन कौन सा तरीका है जो बातिल तरीका है, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। ये जो गुटखा वगैरह हम खाते हैं, तंबाकू वगैरह, ये भी बातिल तरीका है, ये भी बातिल तरीका है। हलाल पैसे को हराम चीजों में सर्व कर रहे हैं। पैसा हमारा हलाल है ना, हम ऑफिस गए, नौकरी किए, कमाए, जो भी अल्लाह ने हमको नवाजा, अब उस पैसे से हम क्या खरीद रहे हैं। अच्छा, वो तंबाकू कहा जाओ, इसे अपने बेटे को खिला दो जो 10 साल का है, कहीं खिलाएंगे, जब हलाल तो बेटा भी खाना चाहिए, बेटा क्यों नहीं खाएगा आपका। यानी आपका जमीर, आप खुद जानते हैं कि वो हराम चीज है, वो अच्छी चीज नहीं है। अगर अच्छी चीज होती तो उसके बाद, अब देखिए बनी इसराइल की कुछ आदतें हमारे अंदर भी आ गई है। अच्छा, इमाम साहब खैनी खा सकते हो, अच्छा इमाम साहब पान जर्दा खा सकते, मतलब एक चीज बयान कर दिया गया और उसका एक सिंपल मिसाल है, आप खैनी मस्जिद में खाई ना रखिए, अल्लाह घर में बैठ जाइए, बैठ के बनाइए, खाइए। भाई क्या कर रहे हैं, मस्जिद में बैठ के खैनी बना रहे, अस्तगफुरुल्लाह, शर्म नहीं आपको। ये हाल हो गया हम लोग का बनी इसराइल की तरह, यानी सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, बेजार सवाल। क्यों सवाल हो रहा है, किसी तरीके से इनके मुंह से निकलवा देना है, बोल देखा जी हाँ, बस उसके बाद खाना शुरू कर देंगे। बातिल में वो चीज भी है, बातिल में सूद भी आ गया, गलत तरीके से खाना हो गया सूद। बातिल में फ्रॉड भी है, किसी को धोखा देकर खा लेना पैसा। बातिल में नाजायज तरीके से कब्जा भी है, नाजायज तरीके से किसी की जमीन कब्जा करके बेच दिया, मालिक को पता ही नहीं चला, हमने बेच के पैसा खा लिया। यानी बातिल की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। चोरी भी है, चोरी करके पैसा ले लिया, खा रहे हैं, या खाना पीना फूड वगैरह जो भी, या डाका डाल के, बहुत तरीके हो सकते हैं बातिल के, एक नहीं, महदूद नहीं, लामहदूद है। अल्लाह ने कहा तरीका बतलाया कि हलाल तरीके से खाना क्या होगा, इल्ला अन तकून तिजारतन, मगर ये कि तुम कारोबार करो, यानी कारोबार करो, बिजनेस करो या कमाओ, कहीं पे नौकरी करो, कारोबार करो। अंतराज मिनकुम, अगर कारोबार करोगे तो कोई तुमसे खरीदेगा सामान तो हम उसको बेचेंगे, जो मुनाफा होगा वो अपने खाने पीने पर खर्च करेंगे, पढ़ने वढ़ने पर। ये अल्लाह ताला ने बयान किया। फिर अल्लाह ने कहा वला तक़्तुलू अनफुसकुम, और ये कि तुम अपने आप को कत्ल ना करो। अब आपके ज़हन में सवाल, वो कौन होगा जो अपने आप को कत्ल कर देगा। हर कोई जीना चाहता है, तो इसके कई माना है। अपने आप को कत्ल ना करो मतलब खुदकुशी ना करो, खुदकुशी हराम है। कोई आदमी है डिप्रेशन में चला जाता है, घर के तनाव से, परेशानी से, कर्ज से, कई वजूहात हो सकती हैं, तो सोचता है कि बार बार तिल मरने से अच्छा है कोई मरता अपनी जान दे दी, गया रेल लाइन के ऊपर सो गया, दरिया में कूद गया, छत से कूद गया, फांसी लगा लिया, कई तरीके का मामला है खुदकुशी। अच्छा, ये सिगरेट नोशी भी खुदकुशी है। सिगरेट के डब्बा पे लिखा रहता है कि खाने से कैंसर होता है ना, लिखा रहता है। हम पढ़ लेते हैं, माशाल्लाह इंग्लिश भी हमारी बड़ी मजबूत है, अब पढ़ने के बाद वही कमाल करते हैं। सामने बहुत बड़ा गड्ढा खोदा हुआ है, मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है, बहुत गहरा गड्ढा है, और लिखा हुआ है उधर मत जाए, जाकर कूद जाए। चालाकी है, सोचिए ना, चालाकी है, कूद जाए जाके, हम नहीं, हम उधर ही जाएंगे। इंजीनियर मना कर भाई नहीं जा सकते, नो एंट्री ना, उधर ही जाएंगे। तो आपको समाज वाले, मुआशरे वाले क्या समझदार कहेंगे कि बेवकूफ कहेंगे? आप खुद सोचिए, उसमें लिखा हुआ है खाने से कैंसर होगा। अल्लाह ताला ने कोई ऐसा खाना हलाल ही नहीं किया जिससे बीमारी होगी। ये इस्लाम की खूबसूरती है। ये लॉजिक याद रखे, कोई सा खाना बताए जो अल्लाह ताला ने हलाल किया है और उसके खाने से बीमारी होगी, कोई एक खाना बताइए। मर्द की सूरत में डॉक्टर जो परहेज कर दे वो एक अलग बात है। बीमारी की सूरत में बीमार हो गए, आप जो है रिच खाना नहीं खा सकते, तेल वाला नहीं खा सकते, बुखार है तो चावल या रोटी नहीं खा सकते। ये एक प्रॉब्लम होने की सूरत में वक्ती तौर पर रोका गया है। लेकिन जिन चीजों को अल्लाह ने हलाल किया है, कोई एक खाना बताए जिसे खाने की बीमारी होगी,
कोई भी खाना नहीं। अल्लाह इस्लाम की कुछ होती है कि हमारे रब ने खाने पीने के बारे में भी ध्यान दिया है कि जो मेरे बंदे दुनिया के अंदर जाएंगे तो उनकी सेहत कैसे बनेगी। और जो चीजों के बारे में डायरेक्ट लिखा हुआ है खाने से कैंसर होगा, और अभी तो हिंदुस्तान में कैंसर का कोई इलाज भी नहीं है, लेकिन ये कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथों में है। तो अल्लाह ने कहा कि बोला तब तुम अनफुसकुम, तुम अपने आप को कत्ल ना करो, ना मारो। तो ये तो कत्ल करने के बराबर है। आज नहीं होंगे लेकिन तिल तिल बूंद बूंद कतरा जो है समंदर बन जाएगा, दरिया बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा करते ज्यादा हो जाएगा, परेशानी बड़ी हो जाएगी। तो हम इस तरह का कोई भी काम ना करें मेरे भाई, क्योंकि देखिए एक एक पैसे का हिसाब अल्लाह लेगा। एक बात याद रखिए, हम और आप भूल सकते हैं। आज 25 साल से जॉब कर रहे हैं, पहली मतलब सैलरी उठाए थे तो कहाँ कहाँ खर्च किए थे हम भूल चुके हैं, ध्यान में नहीं रहेगा। लेकिन अल्लाह के यहाँ सब रिकॉर्डेड है। उनका यहाँ पूरा पीडीएफ फाइल बना हुआ है, कहाँ से पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ, सब बना हुआ है। क़यामत में अल्लाह ताला सब फाइल यहाँ पे दे देगा। पढ़ो, पढ़ते रहो, तो पढ़ के बताओ कहाँ गलत लिखा हुआ है। कोई नहीं बता पाएगा कि गलत है। इसीलिए पैसे जो कमा रहे हैं उसका भी हिसाब अल्लाह को देना ही देना है, इससे छुटकारा नहीं। आगे अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला रहम करने वाला है। फिर अल्लाह कह रहे थे तुम रहीम, मेहरबानी करने वाले हैं। क्यों नहीं नेक काम करते हो ताकि तुम पर हम रहम करें? क्यों नहीं भला काम करते हो ताकि तुम पर हम मेहरबानी करें? क्यों इन चीजों के पीछे पड़े हुए हो जिससे ना तुमको दुनिया में निजात मिलेगी और ना ही आखिरत में निजात मिलेगी? ये भी अल्लाह ने बयान कर दिया। उसके बाद आयत नंबर 30 सूरह निसा आयत नंबर 30 में अल्लाह ने कहा वमन यफअल ज़ालिका उद्वाना व ज़ुल्मन। अब इसके बावजूद अल्लाह ने जो कुछ बयान कर दिया, बयान करने के बाद भी अगर कोई जुल्म और सरकशी की बुनियाद पर इस काम को करेगा, अब अल्लाह ने कह दिया ना कि बातिल तरीके से माल मत खाओ। पता चल गया हमको बातिल तरीका कई तरीके से हो सकता है। किसी का हक मार देना, नाहक पैसा खा लेना, या हराम चीजों को खाना, सब बातिल तरीके में आता है। अब ये सब बयान करने के बावजूद अल्लाह का मैं यफअल ज़ालिका, अगर कोई ऐसा करेगा यानी बातिल तरीके से खाएगा, उद्वान व जुल्मन, सरकशी मतलब सरकशी कहते हैं बढ़ावा, बड़ा तो नहीं होता है कि इसका मन बहुत बड़ा हुआ है, बहुत मन का बड़ा हुआ आदमी है, उसी को सरकशी कहा जाता है। बहुत ज्यादा किसी काम में पड़ जाना, यानी क्या हम हमसे गलत नहीं हो सकता, हम गलत कर ही नहीं सकते। गलती और मैं एक जगह जमा ही नहीं हो सकते, हमसे नहीं हो सकता गलत, नहीं कभी नहीं। अल्लाह कह रहा है अगर कोई इसको उद्वानन, वही सरकशी व जुल्मन, और जुल्म नाहक तरीके का माल खाने के जुल्म का भी रास्ता है। जबरदस्ती किसी का माल हम छीन ले, डकैती कर ले, जुल्म है कि नहीं है? किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर ले, उसको बेच दे, जहां हम भी उस पर रहने लगे, जुल्म है कि नहीं है? अल्लाह कह रहा है उद्वान व जुल्मन। इसके बावजूद जो कुछ अल्लाह ने ऊपर बयान किया है नंबर 29 में, फिर कोई अगर आदमी सरकशी और जुल्म की बुनियाद पर ऐसा करेगा, फसौफा नुस्लीह नारन, तो हम उसको जहन्नम में डालेंगे। हम उसको कहां डाल देंगे? जहन्नम में। अब एक चीज हमारे ज़हन में बैठा दी गई कि मुसलमान है तुम जहन्नम में नहीं जाएंगे, ये तो बात ही गलत है, ये गलत बात है। हम मुसलमान हैं जहन्नम में नहीं जाएंगे, गलत बात है। हमारे ज़हन में बैठा दिया गया कि जो काफिर होते हैं गैर मुस्लिम, वो जहन्नम, उनके लिए जहन्नम है और हमारे जन्नत है। अब ऊपर चलिए, अगर कोई मुसलमान नाजायज किसी की जमीन पे कब्जा कर लेते तो जन्नत में जाएगा? है तो मुसलमान, अल्लाह को मानता है, नबी को मानता है, कुरान को मानता है, हज भी किया हुआ है, उम्रे भी किया हुआ है, नमाज के क्या कहने, रोजे के क्या कहने, और किसी का जमीन दबा के बैठा हुआ है, तो अल्लाह छोड़ देगा उसको? नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। ना सोचे कि हम सारे अमाल कर रहे हैं और ये भी कर लेंगे और उसके बाद हम जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह कह रहा फसाओ का नुस्ली नारा, उसको जहन्नम में डाल देंगे, बच जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इस चीज का लाइसेंस मिल जाए कि मुसलमान अगर नमाज, रोजा, हज, ज़कात और सारी अच्छाई काम करे और कुछ भी कर सकते हैं, तो देखिए मतलब तबाही मच जाएगी, तबाही मच जाएगी। क्यों? जन्नत तो कंफर्म है, अब कुछ भी करो हम तो मुसलमान है नहीं। मुसलमान है तो जन्नत में रहेंगे और जहन्नम, सिर्फ जन्नती में जाएंगे, जहन्नम में नहीं जाएंगे, सवाल पैदा नहीं होता। अल्लाह कह रहा है उसको जहन्नम में डाल देंगे। आगे अल्लाह कह रहा है एक बात, एक होता है ना कि अल्लाह की एक शान होती है, अल्लाह की ये शान वाली एक बात है, वो काना ज़ालिका अल्लाह यसीर, तो अल्लाह बहुत आसान है, चुटकी भी बात नहीं। अल्लाह खुद अपने बारे में कह रहा है कि जहन्नम में किसी को डालना ये तो बहुत आसान है, अल्लाह के लिए कुछ भी नहीं है। वो काना ज़ालिका अल्लाह यसीरा, अल्लाह के लिए तो बहुत आसान है। इसीलिए कोई मुसलमान ये ना सोचे कि हम मोमिन ईमान, अगर हम ईमान वाले होंगे तो हम किसी की जमीन पे कब्जा करेंगे ही नहीं, सीधी सी बात है। एक हदीस है ना अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि एक मोमिन जब चोरी करता है तो मोमिन नहीं होता, एक मोमिन जब जिना करता है तो उसका मोमिन नहीं होता। यानी मोमिन जिना कर ही नहीं सकता, मोमिन चोरी कर ही नहीं सकता,
ये बात अल्लाह ने कहा यहाँ पे कि ये हम उसको जहन्नम में डाल देंगे, वो काना ज़ालिका अल्लाह यसीरा, अल्लाह पे ये चीज तो बहुत ही आसान, इजी है, इजी है, अल्लाह आसानी से डाल देगा उसको। फिर आगे अल्लाह ने बयान किया व इन तजतनिबु कबाइरा मा तुनहौना अन्हु, जिस चीज से अल्लाह ने रोक दिया है अगर तुम उन कबीरा गुनाहों से बचते रहो, इज्तनाब करो, उर्दू में मतलब इस्तेमाल होता है इज्तनाब, उसी से वही तजतनिबु व इन तजतनिबु, अगर तुम बचते रहो कबाइरा, बड़े बड़े गुनाह, कबीरा गुनाह कहते हैं कबायर, उर्दू में कबायर बोलते हैं कबीरा गुनाहों को। कबीरा गुनाह क्या क्या है? सबसे पहले मकाम आता है अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, ये कबीरा गुनाह है। ज़िना करना ये कबीरा गुनाह है। माँ बाप की नाफरमानी करना भी कबीरा गुनाह है। शराब पीना, जुआ खेलना, ये सब कबीरा गुनाह है। अब इन कबीरा गुनाहों में अगर आए एक चीज जिसको बहुत आसानी समझ कहते हैं माँ बाप की नाफरमानी, ये आजकल तो आम बात हो गई कि बाप जैसे बूढ़े होते हैं, बेटी जैसे जवान हो जाते हैं और अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं माशाअल्लाह, तो उन्हें लगता है कि बाप को कुछ आता ही नहीं, वो कुछ नहीं जानते, वो पैदा किए हुए हैं और उनको कुछ नहीं पता है। बड़े बड़े हालात ऐसे, मतलब बड़े बड़े ऐसे मामला आ रहे हैं कि सोच बूझ वाला आदमी शादी किया, वाइफ को लेके अलग हो गया, उसको सेपरेट चाहिए जहां पर माँ बाप वाला टेंशन ना हो। अब माँ है, बाप है, पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं है, हमारा स्टेटस एक मकाम में, पार्टियों में जाते हैं तो इंग्लिश में बात होती है और कितने अच्छे रुझानात होते हैं। हमारे अम्मे अबू जाएंगे पूरे पर पुराने ख्यालात के लोग और पुराने कपड़े पहनने वाले, कुछ स्टेटस भी नहीं है तो खराब लगता है, तो वो अलग ही हो गए। अब ये घरेलू मैटर है, हम लोग सब जानते हैं अच्छी तरीके से, जिस मुआशरे में रहते हैं घर घर की हालत क्या है, और बीवी भी नहीं चाहती। यहाँ पे माफ कीजिएगा, औरतों को मेरा एग्जाम नहीं है, बात हमारी बहनों का मिजाज है कि हम सास और ससुर फ्री, हमको ससुराल चाहिए। तो आप यतीम खाना चले जाइए, वहाँ बहुत से लड़के हैं, आपको यतीम लड़के मिलेंगे, ना उनके बाप होंगे ना उनकी बीवी तो माँ होगी, वहीं पर रिश्ता कर लीजिए। अपने बाप से कह दीजिएगा अब्बा हमको यतीम लड़का उठा के लाइए। यतीम किसको बोलते हैं? जिसका बाप ना हो, जिसकी माँ ना हो। और वही औरत को जब अल्लाह बेटा देता है तो अपनी बेटी से कहती है, बड़ा होता है, देखो माँ बाप को लेके चलना चाहिए। वही औरत कहेगी जब उसके बेटे जवान हो जाएंगे तो कहेंगे कि माँ बाप के कदमों के नीचे तो जन्नत है, क्या उनके कदमों के नीचे जन्नत नहीं थी जो आपकी सास थी? ये हालात हो गए, ये बड़े कबीरा गुनाह है, ये कबीरा गुनाह है। माँ बाप को तकलीफ देना, वो इजहार नहीं करते, वो जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन उनको जो तकलीफ हम दे रहे हैं कबीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर माँ बाप कोई बद्दुआ कर दे औलाद के लिए तो फौरन अल्लाह कबूल कर लेगा। इसीलिए मजबूर ना करें उनको, उनके पास एक बहुत बड़ा हथियार है माँ बाप के पास, बद्दुआ। औलाद के हक में अगर माँ बाप बद्दुआ कर दे, अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह उस बद्दुआ के दरमियान कोई पर्दा नहीं, डायरेक्ट अर्श इलाही को छू जाती है। कि माँ बाप ने कहा कि अल्लाह मेरा बेटा बहुत तकलीफ दिया, रातों की नींद उड़ी हुई, अल्लाह तो उसको तबाह कर दे, तबाह हो जाएगा। इंतजार करें, आज ना हो, कल ना हो, परसों ना होना तो कंफर्म हो गया। सीधा ट्रेन में टिकट वेटिंग लेते हैं, कभी ना कभी कंफर्म हो ही जाता है, कंफर्म। इतना बड़ा हथियार अल्लाह ने माँ बाप को दिया है, इसीलिए आसान ना समझे कि कुछ नहीं जानते, उनको कुछ नहीं पता, उनको कुछ नहीं आता। ये सब कबीरा के बारे में अल्लाह के वही कबाइर, अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचते रहो, कबीरा गुनाहों में माँ बाप की नाफरमानी भी है, माँ तुनहाउना अन्हु, जिससे अल्लाह ने मना किया है। देखो मेरे बंदो, ये कबीरा गुनाह है, ये कबीरा गुनाह है, इससे बचते रहो। तो तुम अगर बचते रहोगे नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, तो अल्लाह तुमसे तुम्हारे गुनाहों को दूर कर देगा, यानी माफ कर देगा। जो गुनाह तुमसे हुए हैं अल्लाह तुमको माफ कर देगा। वनुदखिलहुम मुदखलन करीमा, और बड़ी बुजुर्गी और बाबरकत और अजमत वाली जगहों में तुमको दाखिल करेगा। जन्नत, जन्नत ऐसी जगह है जो बड़ी अजमत वाली है, बड़ी उसका मकाम है। अल्लाह कह रहा है कि तुमको ऐसी जगहों में तुमको दाखिल करें, जन्नत दाखिल करेगा अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचते रहे जिससे अल्लाह ने तुमको मना किया है, तो अल्लाह तुमको बड़ी बुजुर्गी वाली जगह पर दाखिल करेगा। आज का दर्स यहीं पर मुकम्मल होता है, आयत नंबर 31 तक। इसमें अगर कोई सवाल हो ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आप लोग पूछ सकते हैं। 31 खत्म हो गया ना, 31 खत्म, हाँ 5 आयत हो गई माशाल्लाह। 27 28 29 30 लेट से शुरू हुआ, आप 7:45 में जान नहीं, ठीक है चल रहा माशाल्लाह।
कोई सवाल ऑनलाइन भी कोई सवाल नहीं है इमाम साहब? अभी जो गुजरा कि माँ बाप का जो परवरदारी और जो अलग हो जाने वाला जो कॉन्सेप्ट था, तो कहीं हम सुने थे कोई इस्लामिक स्कॉलर से कि पहले के दौर में जैसे सहाबा के समय में ऐसा नहीं था कि जैसा आज का जो हम लोग फॉलो करते हैं कि सब माँ बाप एक ही साथ में रह रहे जॉइंट फैमिली में। पहले ऐसा होता था कि शादी होता था और सहाबा लोग अलग हो गए या सबका अलग अलग रूम रहता, ऐसा कुछ था पहले, या इस पर थोड़ा सा ये चाहिए। ये चीज जो सवाल आपका है कि ऐसा हम भी सुने हैं। ऐसा जो सवाल है कि जैसे सवाल ये है कि अभी दर्स में आया कि माँ बाप की इताअत फरमाबरदारी करना है, और कोई स्कॉलर के जरिए आप सुने, नाम को याद नहीं आ रहा है भाई। ये भाई कह रहे अरब में अभी भी ऐसा ही, अरब में अभी भी ऐसा हाँ, है। ऐसी तो सी- उनको अरब में शादी जैसा करना है, अरब बेटे को अपना अलग घर बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही शादी करना गल्फ में जैसा है, है। जी जी। अरब की जितनी कंट्री है खलीज ममालिक, तो उसमें ऐसा है कि बेटे को शादी होती है और उसको अलग घर वगैरह बना दिया जाता है। तो अभी हम जो बात बोले वो तो मैचिंग नहीं कर रहे हैं कि ऐसे कैसे। देखिए उसका जवाब ये है कि सिचुएशन हर जगह की एक नहीं है। अलग। हम लोग जिस मुआशरे में रहते हैं, एक एक घर में 5-5 बच्चे पोसाए, बिल्कुल एग्जैक्टली। वो कैसे अलग करके देंगे आपको, और कभी रिकवर हो ही नहीं पाए, आज तक नहीं हो पाए। बच्चे नौकरी भी कर रहे हैं, इतना कमा रहे हाई पार, और उसी घर में रह रहे हैं। शादी कर रहे हैं तो किराए के मकान लेकर लड़की को वहां उतार रहे हैं, विदा करके ला रहे हैं। तो अरब में अगर ऐसा हो रहा है, हिंदुस्तान में भी होता है, ऐसी बात नहीं है। जो अमीर लोग हैं हिंदुस्तान में, जिनको अल्लाह ने नवाजा है, वो बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं, अपना घर लेकर। उनके कई शहरों में घर, एक जगह नहीं है। जितनी सिटी है पैसे के हिसाब से अलग अलग सिटी में उनके घर हैं। बहुत से आपको नेमत में जरूरत पड़ेगी कि दिल्ली में घर है। मेरा क्वेश्चन भाई शामा वाला जो अब सवाल ये है कि आपके तो उसी पे हम आ रहे हैं कि जो असल सवाल ये है कि माँ बाप को यहाँ छोड़, साहबा ऐसे करते थे, उनके पास जमीनें होती थी। अरब की एक खुसूसियत थी कि अरब में मालदार कौन माना जाता था, ऊँट ज्यादा होती थी, उसको मालदार माना जाता था। अरब का जो कल्चर था, जमीन। आज भी आप देहातों में जाएंगे, आप यहाँ से बगल में चलिए झारखंड वगैरह में, देहात में इतनी इतनी जमीन है कि एक एक बेटा को दे दिए गए शादी के बाद कि आप अलग हो जाओ। सवाल ये है कि हम लोग जहाँ रहते हैं, जो दर्स जहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 1% ही से लोग मिलेंगे जिनको अल्लाह ने बड़ी फरासत दी है, सहूलत दी है। 99% से लोग मिलेंगे कि जो पिलर कमजोर हो गया और छत पे छत उतार के या पार्टीशन देकर उसमें गुजारा कर रहा है ना। सवाल ये है कि अगर अल्लाह ने आराम भी कर दिया, चलिए अब अरब की सरजमीन में गरीबी नहीं है, क्या अरब में कोई भिखारी कोई देखा है कोई अरबी भीख मांग रहा हो? लेकिन हिंदुस्तान में है मुसलमान जो भीख मांग रहे हैं। तो हमारे यहाँ मसला ये है कि उतनी फरासत अगर रहेगी तो हर आदमी कमा के माँ बाप को इतना दे देगा कि माँ को शिकायत ही नहीं रहेगी। असल प्रॉब्लम क्या है? पैसा। माँ बाप को तकलीफ होती है तभी ना मामला गड़बड़ होता है, केयर नहीं हो पाता है, और भाइयों में एक इतलाक हो जाता है। सिर्फ हम क्यों देखें, आप भी देखिए। तो हम लोग जिस समाज से बिलोंग करते हैं वो एक गरीब समाज है, यहाँ पे उतनी फरावानी नहीं है। अगर फरावानी हो जाएगी तो झगड़ा ही नहीं होगा। माँ बाप को क्या दिक्कत है, तुम पुर्तगाल में रहो या तुम यूरोप के अंदर रहो, टाइमली अगर मंथली पैसा उसके हाथ में आ जा रहा है तो परेशानी तो हो जाएगी। लेकिन इसमें भी एक चीज छुपी हुई है, वो है माँ की खिदमत का हम, जो असल चीज है। आप कहीं भी रहिए, क्या ऐसा है अल्लाह के रसूल की जिंदगी से ये मिलता है कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि हम 4 या 5 या 6 बेटे हैं, सब शादी करके अलग हो जाए तो माँ को देखिएगा कौन? सवाल तो ये है। घूम फिर के तो वही सवाल आ गया, वो जब बूढ़े हो जाएंगे तो कैसे खिदमत करेंगे, कि माँ बाप की खिदमत और खिदमत कैसे होगी हमारी? आप समझा रही ना? ये असल चीज है कि हम लोग जिस समाज में ताल्लुक रखते हैं, हम इस बुनियाद पर माँ बाप से हट जाते हैं। आप हटिए, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि हम लोग हैं और एक आदमी के जॉब जो है मुंबई में है या कलकत्ता में, रहने वाले यहाँ के हैं, तो आप जब बीवी बच्चों को ले जाकर वहां रख सकते, माँ बाप क्यों नहीं रख सकते? सवाल ये, वो क्यों नहीं रह सकते? आप समझा रही ना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिक्कत हो रही है। और ये एक प्रैक्टिकल में बात बता रहा हूं कि जो भाई कमजोर होता है पैसे से, वही संभालता है माँ, उसको पैसा दे दिया जाता है कि मंथली हम लोग आपको 3-4 रुपए भेज देंगे, आप देखिए। क्यों आपके साथ क्यों नहीं रह सकती माँ बाप? सवाल ये। तो वो तो बचपन में आपको लेकर आती थी, अपने छाती से लगाकर दूध पिलाती थी। ठंडी का मौसम आया तो चूल्हा जला के घर में आपको गर्मी पहुंचाती थी। गर्मी का मौसम आया तो अपने हाथ से पंखा हाथ कर, लाइट चली जाती थी फिर भी अपने हाथ से हाथ रही ताकि बच्चा उठे नहीं, नींद ना टूटे। आप क्यों नहीं लेकर रख सकते? तो हम जस्टिफाई नहीं करेंगे यहाँ पे, ये ऐसा हो रहा है हमारे माशरे में, और माँ बाप तिल तिल मर रहा है बच्चों की मौजूदगी में। मेहमान की तरह माँ को देखने आया जा रहा है। सुनने में आया तबियत खराब चले आए,
यहाँ पे एक थोड़ी लड़की की भी प्रॉब्लम है। लड़कियों का क्या मामला है कि हमने हदीस पढ़ा, हमने इमाम साहब से भी पूछा, तो बीवी के ऊपर शोहर की खिदमत है ना कि उसकी माँ की। ये दलील दी जा रही है, कितनी जहालत वाली बात है, ये तो जहालत से भरपूर है। हजरत ने कहा, इमाम साहब ने कहा कि एक बीवी के ऊपर उसके शोहर की खिदमत है, उसके बच्चों की खिदमत है, उसके माँ बाप की नहीं है। अब वो लड़की अपने मैके जा रही तो अपनी भाभी से कह रही तो अम्मा को देखिएगा। वो क्यों देखेगी तुम्हारी भाभी तुम्हारी अम्मा को? तुम्हारी भाभी तुम्हारा भाई को देखेगी, तुम्हारे माँ बाप को नहीं देखेगी। जब तुम्हारे ऊपर ही फॉर्मूला है तो उसके ऊपर भी तो फॉर्मूला होगा। वो मैके जा रही तो अपनी भाभी को फोर्स कर रही है कि तेरा अम्मा अब्बा को देखिएगा। बात समझ आ रही है क्या बोलना चाह रहे हैं? तो इखलास कहाँ है? ऐसा तो कभी नहीं कि अल्लाह रसूल ने कहा हो कि बीवी के ऊपर सिर्फ शोहर की खिदमत है, माँ बाप सास ससुर की नहीं है। ये बहुत सुलगता हुआ मसला है कि माँ बाप बुढ़ापे में हंसने के बजाय रो रहे हैं। अच्छा, उनका दिल नहीं चाहता कि अपने बच्चों के साथ रहें, जिनको उन्होंने पैदा किया। हम में से जो लोग भी बाप बने हुए हैं, आप पूछिए, हम खुद बच्चियों के बाप हैं, कि औलाद में कितनी सुकून है। अब हम जब बड़े हो जाए, हमारे बच्चे अपने परिवार से सेफ हो जाए, तो हमको तकलीफ नहीं होगी कि अपने बच्चों को देखे, अपने हाथों से उसको प्यार करे, मोहब्बत करे, बैठ के खाना खाए, बातें करे। कहाँ ये चीज आजकल मिल रही है? तो इतना भी एजुकेटेड नहीं हो जाना, तालीम याफ्ता, कि बिल्कुल उनको रुला देना है जिनकी वजूद से हमारा वजूद है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। मान लीजिए 4 भाई 4 शहरों में रहते हैं, महीना बांट लीजिए, 3 महीना आपके पास रहेगा, 3 महीना आपके पास, 3 महीना उनको भी अच्छा लगेगा सबके साथ रहना। इंसाफ तो करें आप। और ये भी एक बात मैं दर्द के साथ कह देता हूँ, वही भाई जो अलग हो रहा है, उसके सास ससुर का रेला लगा उसे घर पे आने जाने का। ये भी सुन लीजिए, हकीकत बात बता रहा हूँ। आए दिन सास ससुरा के रह रही, साली रह रही, कोई तकलीफ नहीं। तो हमने तो खुद बिगाड़ा अपने माशरे को, इंसाफ नहीं कर रहे हैं। इमाम साहब, कबीरा गुनाहों के बारे में आपने बताया था, तो गाली देना भी कबीरा गुनाहों में आता है ना? गाली देना कबीरा गुनाह में नहीं, बदअखलाकी में से, बदजुबानी में से। किसी को झूठ बोला तो कबीरा, हाँ, झूठ बोला तो कबीरा। हाँ, झूठ बोलना कबीरा, झूठ बोलना कबीरा गुनाह, गाली देना कबीरा गुनाह में से गुनाह है, अखलाक के खिलाफ है। इंसान की खूबसूरती उसका अखलाक है। अब अखलाक ही नहीं रहेगा तो फिर खूबसूरती कैसे रहेगी, है ना? तो गाली गुलोच करना, हदीस ने अल्लाह के वसल्लम की कि तुम में से कोई अपनी माँ को गाली ना दे। तो एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल, कौन होगा जो अपनी माँ को गाली देगा? तो अल्लाह के नबी ने कहा, तुम अगर किसी की माँ की गाली दोगे तो बदले में भी तो तुम्हारी माँ की गाली देगा। तुम्हारी गाली देने से तुम्हारी माँ को गाली देगा, तुम मजबूर करे उसको कि मेरी माँ को गाली दो। ये बात अल्लाह के रसूल ने बताई। इमाम साहब, जैसे कि माजी में किसी से कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उससे मतलब हमको दिल में कीना नहीं है, उसमें कोई मसला भी नहीं है, लेकिन हम 3 दिन से मतलब क्या हम उससे बात ही नहीं करते, तो वो गुनाह है क्या? उसका लेके मेरे को कोई ऐसा फीलिंग नहीं है कि वो मेरा मतलब उससे प्रॉब्लम है, मतलब कुछ माजी में हो गया प्रॉब्लम, तो उससे हमको कोई बुक्स भी नहीं है। क्योंकि बात नहीं करते हैं उससे, नहीं, बात नहीं करते, आप नहीं करते हैं। हाँ, मतलब वो लोग भी नहीं करते हैं, तो हम अभी उन लोगों का मसला अलग है। देखिए, मसला है कि हर आदमी अपने अमल का जिम्मेदार है। अल्लाह ताला हमसे किसी के अमल के बारे में नहीं पूछेगा और ना उनसे हमारे अमल के बारे में पूछेगा, है ना? किसी से सवाल ये है कि अल्लाह के रसूल की जो तरीका है कि किसी से भी 3 दिन जरा बातचीत बंद ना करें। तो आप करें सलाम, वो ना करे, जवाब भी ना देगा, हो सकता है आपको धुतकार देगा, देखेगा भी नहीं। आप अपना काम करिए, है ना? वो क्या कर रहा है वो मसला नहीं, वो उसकी पकड़ होगी कि हाँ भाई कोई आपसे सुलह की, आप क्यों नहीं की? शादी किया मैंने, काट दे दो। आप अपना काम करते हैं। अपना काम कर दीजिए। कोई हम बोलना चाहे, आपको अपना काम करना है। नहीं करेंगे, अल्लाह आपको पूछेगा आपके बारे में। ये तो पूछेगा आपसे, हमसे हमारे बारे में अल्लाह पूछेगा। अल्लाह ही नहीं कहेगा वो क्या करता था, उससे तो हम पकड़ लेंगे उसको। हम पहले अपना बात करो ना, है ना? जैसे हमारे मुआशरे में चलता है अदला का बदला, वो जैसा क्या हो चुका है, थोड़ी ना है। अल्लाह के रसूल को मारा जाता है, पहाड़ी पर फूल हो गए, लहूलुहान हो गए, लेकिन आपने बदला नहीं लिया। आपने फरिश्ते आए, कहे अल्लाह के रसूल अब कहे तो इन ताइफ पहाड़ी वालों को 2 पहाड़ों के अंदर पीस कर रख देंगे, अल्लाह उसने कहा नहीं। ये हमारे इस्लाम तालीम नहीं देता। अभी देखिए ना, फलस्तीन के अंदर इसराइल बच्चों को मार रहा है। किसी आलिम ने कहा कि हाँ उनके बच्चों को मारो, यहूदी बच्चों को है? किसी आलिम साहब ने सुना अरब या अजम में कि वो हमारे बच्चों को मारा, हम भी उनके बच्चों को मारे। एक गैर मुस्लिम जंग में मुस्लिम औरतों के साथ रेप करे, तो क्या कोई आलिम कहेगा कि तुम उनकी औरतों के साथ रेप करो? है इस्लाम में? बिल्कुल नहीं है, नहीं है। तो ये चीज है कि हमें अपना काम करना है, वो करे ना कर उसकी पकड़ोगे, हमको अपना काम करना है। ऑनलाइन में सवाल नहीं है। एक सवाल खुशी बोले थे ना कि हाँ। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना भी कैसा है? आपने इंश्योरेंस आपने बोलता है कि वो तो अलग चीज होगी।
देखिए खुदकुशी एक अलग चीज हो और आपका सवाल है इंश्योरेंस के बारे में, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो चाहे जो भी इंश्योरेंस हो, वो तो एक सूद का काम हो गया इंश्योरेंस वाला। मेरे साथ में फैमिली के लिए या खुद के लिए देता है तो क्या है? हम बता रहे हैं जैसे कारखाना वगैरह में, मिल वगैरह में ESI वगैरह होता है ना, और बहुत से डिपार्टमेंट में होता है गवर्नमेंट का, जिसमें इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस तो क्या हराम चीज है, बस मेरे अगर अपनी मौत से कोई बचा नहीं, सामान 100 बरस की पल की खबर नहीं, इंश्योरेंस किए हुए जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, हम मर जाएंगे तो पैसों को नहीं इस्तेमाल करेगा। ऐसा कुछ लाइए जिसको हमको फायदा हो। लेकिन इसी पे सवाल है, अगर कंपनी मैंडेटरी कर दिया है कि आपको लेना ही होगा, आप ले ना ले, आप अगर नौकरी करना इस कंपनी में हाँ, तो आपको इंश्योरेंस उसी बारे में नहीं, इससे पहले तो हम बताए थे आपको, इससे पहले बात गुजर चुकी है कि हमको जिंदगी भी जीना शरीयत के मुताबिक, और हम चाहते हैं कि हमारा आजमाइश भी ना हो, कैसे हो जाएगा? आजमाइश तो होगी हमारी। वो सूरह अल-अनकबूत को एक पढ़कर सुनाए थे ना कि क्या लोगों ने ये सोच रखा है कि हम ईमान लाए हैं तो अल्लाह हमको नहीं आजमाएगा? हमने तुमसे पहले के लोगों को भी आजमाया है। एक कंपनी में गए, वो कह रहा है कि नहीं आपको इंश्योरेंस नौकरी नहीं मिलेगी, तो क्या दुनिया में वही एक कंपनी जहां पैसा कमा सकता है और कोई नहीं? हम अल्लाह की उस कंपनी को छोड़ देंगे, अल्लाह की क्यों? उसमें सूद का मामला आ जा रहा है। कब्र की अंधेर नगरी को जिसको जहन में आ गया वो बचेगा। भाई वहां पे एक हराम चीज है, आप कैसे उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? जैसे बैंक की नौकरी, पूरा काम सूद के ऊपर है, सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद पर गवाही देने वाला, सूद लिखने वाला, चारों पर अल्लाह उसके रसूल की लानत है। बैंक की नौकरी है वो हराम है, लेकिन हम कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं सोचकर, क्यों? वही एक नौकरी है और कोई नौकरी नहीं है। लेकिन ये बाइक का जो इंश्योरेंस हो तो अलग मसला हो जाएगा। कोई भी इंश्योरेंस हो, कोई भी। तो ले लेंगे तो फाइन मारेगा ही मारेगा गवर्नमेंट। देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि हम जान रहे हैं कि इस डिपार्टमेंट में गए और वहाँ एक सूद का मामला गया, हम वहाँ नौकरी नहीं करें। बाइक वाला मसला बोल रहा हूँ सर। जो बाइक चला रहा है बाइक का इंश्योरेंस जो कंपनी है गवर्नमेंट कोई बाइक- गाड़ी नहीं है उसका इंश्योरेंस करवाना ही जरूरी है, नहीं तो वो उससे बाइक नुकसान का होगा। बैंक सुना दे। बाइक नहीं देखिए कुछ चीजें ऐसी है ना जो मजबूरी है, बता दें, हम बता दें। फोटो खींचना हराम है, वाइफ से फोटो खींचना हराम है, लेकिन आज के ज़माने में आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID के लिए आपको फोटो खिंचवाना ही होगा। तो ऐसी सूरत में इस्लाम आसान हो जाता है, इजाज़त देता है कि आप खिंचा सकते हैं, लेकिन दिन भर क्लिक करते रहे ये हराम है। हाँ ये हराम है, क्योंकि अल्लाह ताला का हदीस है ना, क़यामत के दिन बोलेगा कि चलो आदमी को फोटो खींचो ना, उसमें रू डालो, उसमें रू